Hello students, welcome to PYQ series JEE Mains April 2023. Today the chapter is current electricity. Today we are going to solve all the MCQs from all the shapes that are related to these concepts: electric current, drift velocity, Ohm's law, resistance and resistivity. Let's get started. This question came in 6th April, first shift 2023 examination. The resistivity of semiconductor varies with temperature. Which of the following curve represents the correct behavior? Students, can I say, in case of semiconductor, if we increase the temperature, the number of free electrons will also increase. So in case of semiconductor, if we are increasing the temperature, the number of free electrons will be increasing. So when number of free electrons will increase, I think current will also increase. That means बच्चों, current increase हुआ है तो जो resistivity है, जो rho है, वो decrease हुआ होगा. So in case of semiconductor, basically when temperature increases, the resistivity is going to decrease. Yes, कहाँ पर ऐसा ग्राफ दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं, as temperature is increasing, resistivity is decreasing, but that is linear graph, जो सेमीकंडक्टर में पॉसिबल नहीं है. ओके, आपको न्यूमेरिकली अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर will be inversely proportional to temperature. So graph is like a hyperbola. So ऑप्शन ए में टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी कम हो रहा है सर, जो होना चाहिए, बट वो लीनियर है, जो सेमीकंडक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है. व्हाट अबाउट बी? नॉट पॉसिबल. सी नॉट पॉसिबल. डी को देखिए बेटा, रो एंड टी द रिलेशन इज इनवर्स. सो ग्राफ इज अ हाइपरबोला एंड दिस इज गोइंग टू मैच विथ ऑप्शन डी. इज दैट फाइन विथ यू? Straightforward numerical, it will be option D. Okay, this question came in 8th April, second shift 2023 examination. The equivalent resistance between A and B as shown in figure is option A 10 kilo ohm, option B 30 kilo ohm, option C 5 kilo ohm, option D 20 kilo ohm. Students, the circuit is like this. This is terminal A, this is terminal B. This resistance is 20 kilo ohm, 20 kilo ohm. This one is 10 kilo ohm. All right. So, students, I think purposely ये circuit को थोड़ा सा difficult दिखाया गया है. But this is a very simple thing to solve. बेटा इसका बेसिक मतलब होगा that this 20 kilo ohm, this 20 kilo ohm and this 10 kilo ohm are connected this way. Yes sir. So that means these three resistors are actually connected in parallel with each other. This is terminal A sir, and this is terminal B. All right. So students, 20 kilo ohm is connected with 20 kilo ohm in parallel. शॉर्टकट बताइए, अगर ये तीनों रेजिस्टर का वैल्यू अलग होता तो हम पूरा लेंथ वाइज सॉल्व करते. हम लिखते 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. बट आई थिंक इसको हम थोड़ा टाइम सेविंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड उन दोनों का वैल्यू सेम है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा डिवाइड बाई 2. सो 20 किलो ओहम एंड 20 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट होगा बेटा 10 किलो ओहम. करेक्ट है. अगर किसी को एक्चुअल फॉर्मूला की ज़रूरत है, मैं उनको फॉर्मूला दे सकता हूँ. स्टूडेंट्स, एक्चुअल फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. बट यहाँ पे 3 रेजिस्टर है तो इससे कम चलेगा सर. नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स,
इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड उन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 दिस वे. सो RP का शॉर्टकट बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय n. करेक्ट है बेटा. RP इज इक्वल्स टू R बाई n. सो स्टूडेंट्स 20 and 20 are connected in parallel, so it is 20 divided by how many resistors sir? 2. So 20 by 2 will give you 10. So 20 connected in parallel, answer will be 10. तो ये दोनों के कॉम्बो का आंसर क्या हो गया सर? 10. देन 10 किलो ओहम, ये 10 किलो ओहम एंड ये 10 किलो ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल. सर 10 in parallel with 10, the answer will be 10 by 2 which is 5 किलो ओहम. सो RP का सर फाइनल वैल्यू होगा, या फिर आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये पूरे सर्किट का, विच इज रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स A एंड B. RAB इज इक्वल्स टू 5 किलो ओम. आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? 20 parallel, the answer will be 10. This 10, that 10 connected in parallel, so answer will be 5 kilo ohm. This is given in students option C. Easy है. Okay. This MCQ came in 10th April 2nd shift 2023 examination. Theoretical question this is. In a metallic conductor, under the effect of applied electric field, the free electrons of the conductor, option A, move in the curved path from lower potential to higher potential. Option B, drift from higher potential to lower potential. Option C, move in the straight line paths in the same direction. And option D, move with the uniform velocity throughout from lower potential to higher potential. So students, force acting on charge, yes, when it is placed in electric field is given by the formula F is equals to Q times of E. In case you need in vector form sir, F vector is equals to Q times of E vector. Now electrons are negatively charged particle for sure, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब प्लस से माइनस. What about electrons? Electrons will travel. इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. एंड क्या इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं? द आंसर इज नो. तो ये सब सिनेरियो ध्यान में रख के आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा. मेरे हिसाब से द आंसर विल बी ए, मूव इन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर will move in the curved path from lower potential to higher potential. B is not possible because दिया है higher to lower potential. C is not possible because दिया हुआ है same direction. वही हो गया बेटा, higher potential to lower potential, same direction मतलब. ऑप्शन डी देखते हैं. ऑप्शन डी में lower to higher potential बोला है, बट क्या बोला है? uniform velocity. That is not possible students. सो ये सब ध्यान में रखिए, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ. द आंसर की शुड बी ए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर विल मूव इन द कर्व्ड पाथ्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. यस, दिस MCQ केम इन 11th April 2nd shift 2023 एग्जामिनेशन. सर्किट इज प्रोवाइडेड टू अस. पूछा जा रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज, ऑप्शन ए 1/4 एम्पियर, ऑप्शन बी 2/3 एम्पियर, option C 1/3 ampere and option D 1/2 ampere. Students, the circuit is like this. Now can I say we have to find out current flowing through R2, मतलब we have to find out current flowing through 4 ohm resistance. But as we can see, this 4 ohm and this 2 ohm are connected in series. सो स्ट्रेट अवे हम समझ गए होंगे कि जो करंट 2 ओहम से फ्लो होगा वही 4 ओहम से होगा, एंड वही दोनों के कॉम्बो 6 ओहम से फ्लो होगा. 2 ओहम एंड 4 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आंसर क्या होगा? 6 ओहम. द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम 4 ओहम विल बी द सेम. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, बाय मेकिंग 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6 ओम. बेटा इजी है. टेल मी द वैल्यू स्टूडेंट्स. बैटरी कितने वोल्ट का है? 8 वोल्ट. ओके,
दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज ई, डी, सी, ठीक है ना? ओके, टेल मी 2 ओहम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, दिस इज 3 ओम सर। ओके, नाउ 6 ओहम ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है बेटा, ये 2 + 4 सीरीज है ना ये, तो ये हो जाएगा 6 ओहम, करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होता तो हम इतना स्टेप वाइज सर्किट ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट ना करते, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ द ब्रांच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्किट की आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम थोड़ा इसको स्टेप वाइज ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ये 6 ओम समझा बेटा आपको? नाउ देन यू टेल मी दिस 6 ओहम एंड दिस 6 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन दोनों का वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है अपॉन 2। सो 6 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6/2 विच इज 3 ओहम, करेक्ट है। तो ये हो जाना है 2 ओहम दिस वे, 3 ओहम सर, 4 ओम हियर, बैटरी 8 वोल्ट सर, this is 3 ohm, yes, what next? So look at this, 6 and 6 are connected in parallel, so equivalent resistance will be 3 ohm, yes beta। next step, this 3 and this 3 are connected in series। आप चेक कर सकते हैं, जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही सेम करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो ये 3 और ये वाला 3 कनेक्ट हो गए बेटा सीरीज में, 3 and 3 connected in series, आंसर will be 3 + 3 that is 6 ohm, yes। 4 ohm students, 2 ohm, 3 ohm, क्या आंसर आया था आपके पास? 6 ohm, करेक्ट है। ये बैटरी 8 वोल्ट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यू टेल मी दिस 6 ohm and this 3 ohm are connected in parallel। 6 and 3 are connected in parallel. Now students, when 2 resistors are connected in parallel, equivalent resistance Rp will be given by the formula R1 R2 divided by R1 plus R2. This is product upon sum, R1 R2 upon R1 plus R2. So this is 6 into 3 divided by 6 plus 3. Okay sir, product upon sum. So this should be 6 into 3 divided by 9. This will go 3 times. 6/3 will give you 2 ohm, करेक्ट है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स अब हम ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन सोच रहे थे, हमें आंसर मिलेगा 2 ohm, यस। सो दिस विल बी दिस 2 ohm एज इट इज, दिस 4 ohm एज इट इज, बैटरी एज यूजुअल 8 वोल्ट सर, 4 ohm 2 ohm कॉपी पेस्ट हो गया, 8 वोल्ट कॉपी पेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आप बताइए कितना लिखूँ मैं यहाँ पर? 3 ohm 6 ohm connected in parallel, the answer will be 2 ohm। Is that fine with you? Yes। Now students, आप बताइए ये वाला 2 and ये वाला 2 सीरीज है या पैरेलल है? The answer is सीरीज है, क्योंकि जो करंट यहाँ से आप फ्लो करवाओगे वो सेम करंट यहाँ से भी फ्लो होगा। So 2 and 2 are connected in series, so आंसर होगा 4 ohm। So your circuit will be, बेटा इसको इरेज कर देता हूँ मैं, okay। So this is 8 volt sir, 4 ohm this way, ये 4 ohm है बेटा, okay। And this is also 4, 2 connected in series, answer is 4 ohm, okay sir। One last step to do, 4 ohm are connected in parallel, 4 connected in parallel, so equivalent resistance होगा 4 divided by 2, that is 2 ohm। So sir, the simplified version is this, 8 वोल्ट का बैटरी है, 4 in 4 पैरेलल, तो आंसर क्या होगा सर? 2 ओहम। ये डिस्कशन हो चुका है हमारा, करेक्ट है। सो आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द टोटल करंट जो यहाँ से जनरेट होगा एज पर ओहम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V/R, या फिर EMF डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज़ 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओहम, दैट शुड गिव यू 4 एम्पियर। सो स्टूडेंट्स, जो मेन करंट है, जो टोटल करंट है वो है 4 एम्पियर, ये फॉलो किया आपने। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये जो
मेन करंट है, टोटल करंट है, दैट इज 4 एम्पियर, करेक्ट है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस 4 एम्पियर रीचेज ओवर हियर. नाउ कैन आई से स्टूडेंट दिस 4 एम्पियर विल स्प्लिट इनटू 2 रेजिस्टर्स, बट फॉर यू द गुड पार्ट इज ये दोनों रेजिस्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, 4 ओहम 4 ओहम, तो करंट स्प्लिट होगा एंड दैट टू इक्वली होगा, नहीं तो आपको करंट डिवाइडर रूल करना पड़ सकता था यूज. बट हियर सर 4 ओम 4 ओम, तो करंट स्प्लिट होगा और वो भी इक्वली, क्योंकि दोनों रेजिस्टर इक्वल है. सो स्टूडेंट्स ये वाला करंट कितना होगा, 2 एम्पियर होगा. व्हाट अबाउट दिस करंट, 2 एम्पियर. ये ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये जो 4 ओहम का रेजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है सर, 2 एम्पियर, करेक्ट है. बेटा ये 4 ओहम आपके पास कहाँ से आया, यहाँ से आया, 2 इन 2 कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए आपको 4 मिला था वहाँ पर, करेक्ट है. तो ये 2 ओहम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, और इससे भी 2 एम्पियर, दोनों के कॉम्बो से सर जी कितना, 2 एम्पियर, बिकॉज ये दोनों सीरीज है. यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, बिकॉज ये 4 ओहम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर. ये ठीक है स्टूडेंट्स. यस बेटा ये 2 एम्पियर, इनफैक्ट ये 2 ओहम, ये 2 वाला ओहम है, करेक्ट है. अच्छा ये 2 ओहम आपके पास कहाँ से आया था स्टूडेंट्स, ये 3 एंड ये 6 को आपने कंसिडर किए थे इन पैरेलल. नाउ स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए ये टोटल करंट कितना है, सॉरी ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओहम आपको सॉल्व करके मिला. क्या सॉल्व किया था आपने, प्रोडक्ट अपॉन सम किया था इसका. यस मतलब इन दोनों से टोटल कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर. इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है सर, 2 एम्पियर. तो इन दोनों से कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर, मतलब दोनों का टोटल करंट मिलके कितना होगा, 2 एम्पियर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करंट है 2 एम्पियर का वो स्प्लिट होगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा करंट डिवाइडर रूल. करंट डिवाइडर रूल आप समझे स्टूडेंट्स, कितना एम्पियर करंट है सर, 2 एम्पियर, वो स्प्लिट होगा. अगर बेटा आपको वो भी टाइम सेव करना है तो आप देख पा रहे हैं 3 एंड 6 ओहम द रेशियो विल बी 1/2. सो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1/2 है, सो करंट का रेशियो होगा 2/1. तो बेटा आप क्या करिए, 2 एम्पियर करंट को आप ऐसे स्प्लिट करिए, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है सर, 1/2, सो करंट का रेशियो क्या होगा सर, 2/1 इनवर्स. सो स्टूडेंट्स ये हो जाना है 4/3 एम्पियर एंड 2/3 एम्पियर. आप चेक कर लीजिए बेटा, 4/3 प्लस 2/3 आपको क्या देगा, 6/3, मतलब टोटल 2 एम्पियर की जो बातें हो रही थी वही तो है. सो 4/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर करंट फ्लो होगा थ्रू 3 ओहम एंड 6 ओहम रेस्पेक्टिवली. यस दैट मीन्स ये 6 ओहम से कितना करंट फ्लो हो रहा है सर, 2/3 एम्पियर. ओके नाउ स्टूडेंट्स ये 6 ओहम हमें कहाँ से मिला था, बहुत सही क्वेश्चन है ना, आपको मजा आ रहा है राइट. बेटा ये 6 ओहम आपको कहाँ से मिला था, ये 3 ओहम को आप कंसिडर किए थे सीरीज, 3 एंड 3 इन सीरीज गेव यू 6 राइट. मतलब ये होगा स्टूडेंट्स 2/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 6 ओम रेजिस्टेंस से, मतलब 2/3 यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, 2/3 यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, करेक्ट है. अच्छा बेटा मतलब ये जो 3 ओहम है इससे डेफिनेटली कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2/3 एम्पियर. नाउ माय क्वेश्चन इज ये 3 ओहम आपके पास कहाँ से आया था, यहाँ से आया था स्टूडेंट्स. 6 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल गिव यू 3. तो बेटा अभी क्या होगा, ये दोनों से मिल के कितना करंट आ रहा है, 2/3 एम्पियर. ये 3 ओहम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2/3 एम्पियर. ये 3 ओहम इन दोनों के पैरेलल से आंसर आपको मिला था, तो इन दोनों से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, 2/3 एम्पियर. दैट मीन्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर. स्टूडेंट 6 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो करंट स्प्लिट होगा एंड द गुड पार्ट इज इक्वली होगा, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो करंट भी इक्वली स्प्लिट होगा, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर. दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये 6 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1/3 एम्पियर. ये 6 ओम आपको कैसे मिला था, 4 एंड 2 को आपने सीरीज कंसिडर किए थे, मतलब 1/3 एम्पियर 6 ओम से फ्लो होगा, 1/3 एम्पियर 4 ओम से फ्लो होगा, 1/3 एम्पियर 2 ओम से फ्लो होगा, बिकॉज 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये तो मैं आपको 5 मिनट पहले ही बता चुका हूँ बेटा. तो दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओहम, दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 इज 1/3 एम्पियर. 1/3 एम्पियर is the required value of current. So the answer key should be C.
मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझिए, साइमल्टेनियसली आप सॉल्व भी करिए, एंड जब एक बार ये वीडियो आप पूरा देख ले फिर एक बार ये सेम क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना, देखना यू विल एन्जॉय वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यस, दिस MCQ came in 12th April first shift 2023 examination. A wire of resistance 160 ohm is melted and drawn in a wire of 1/4 of its length. The new resistance of the wire will be option A 640 ohm, B 40 ohm, C 10 ohm and D 16 ohm. Students, the resistance of the wire, initial resistance of the wire I am considering R1 is given as 160 ohm. Okay, it is melted and drawn in a wire of 1/4 of its length. मतलब final length is equals to 1/4 times of initial length. Okay sir, the new resistance of the wire will be how much? R2 will be how many times of R1? In fact, what is the value of R2? करेक्ट है, R2 का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे, टाइम्स नहीं पूछ रहे, करेक्ट है। स्टूडेंट्स, क्या हम जानते हैं व्हेन यू आर रिकास्टिंग द वायर, इफ लेंथ विल बिकम 1/4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। सो इसका तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, हम जानते हैं फाइनल रेजिस्टेंस R2 विल बिकम n² टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस R1. R2 is n² times of R1, where n is number of times length have become. Sir, length have become how many times? 1/4 times. So R2 will be 1/4 का square, which is 1/16 multiplied by R1. What is the value of R1, sir? 160 ohm. So this should be 10 ohm beta. So the final resistance of the wire R2 is equals to 10 ohm, and this is given in option C. आई विल सीरियसली सजेस्ट यू, आप इसको शॉर्टकट से ही करिए। R2 इज n² टाइम्स ऑफ R1, n इज नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ हैव बिकम। इन केस आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट नहीं जानते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ कैसे काम करना है यहाँ पे, ठीक है। बट एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है सर। बट अभी सेटिस्फैक्शन के लिए जिनको ये नहीं पता है उनको मैं एक लॉन्ग कट दिखाता हूँ बेटा। ओके स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय ρ into L/A, करेक्ट है। Standard formula relating resistance with resistivity. R is the resistance, rho is the resistivity, L is length of the wire, A is its area of cross section. So that means students हम लिख सकते हैं R1 divided by R2 is equals to L1 divided by L2 multiplied by A2 divided by A1. Rho depends on material, वो cancel out हो जाना है रेशियो में। Now students, what happens is if length will become n times of initial length, L2 is n times of L1 बेटा। ओके आपने वायर को स्ट्रेच करके लेट से लेंथ को 2 टाइम्स कर लिया तो n का वैल्यू 2, लेट से 3 टाइम्स कर लिया तो n का वैल्यू 3। वैसे लेट से आपने वायर को कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेस करके आपने उसके लेंथ को कम किया, सो लेंथ आपने हाफ कर लिया इन केस तो n का वैल्यू हाफ। लेंथ आपने 1/3 कर लिया तो n का वैल्यू 1/3। सो वही मैं आपको समझा रहा था 2 मिनट पहले, n इज नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ हैव बिकम, करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई से वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी रिमेनिंग द सेम, वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो अगर L2 n टाइम्स ऑफ L1 है बेटा तो A2 विल बी 1/n टाइम्स ऑफ A1, करेक्ट है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स, सो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रिलेशन इनवर्स होगा। अगर लेंथ n टाइम्स हो जाएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बिकम 1/n टाइम्स। आप इसको सब्सटीट्यूशन करिए, आपको n² मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो R1 डिवाइडेड बाय R2 विल गिव यू L1/L2। सर L1 डिवाइड बाय L2 इज 1/n इंटू सर A2/A1। सर व्हाट इज A2/A1? 1/n, टोटल हो जाएगा 1/n²। सो स्टूडेंट्स R1/R2 इज 1/n²। सो R2 विल बिकम इक्वल्स टू n² टाइम्स ऑफ R1। वही शॉर्टकट मैं आपसे डायरेक्टली यूज़ करने के लिए कह रहा था, R2 इज n² टाइम्स ऑफ R1, करेक्ट है बेटा। आपने फॉलो किए दोनों मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते फिर। This MCQ came in 15th April, first shift 2023 examination. Given below are two statements. Statement 1, the equivalent resistance of resistors in a series combination is smaller than least resistance used in the combination. Statement 2, the resistivity of the material is independent of temperature. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, both statement 1 and statement 2 are false. Option C, statement 1 is false but statement 2 is true. Option D,
both statement 1 and statement 2 are true. Students, in statement 1 it is given that the equivalent resistance of resistors in series combination is smaller than least resistance used in the combination. बेटा this statement is false. इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है बेटा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी बड़ा होता है, एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आरपी वो छोटे वाले रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी छोटा होता है. तो यहाँ जो स्टेटमेंट सीरीज के लिए गिवन है वो एक्चुअली पैरेलल के लिए सही है. सो उन्होंने तो ये सीरीज के लिए दिया हुआ है, सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स. आप समझे स्टूडेंट्स टीचर क्या कह रहा है आपसे? इनकेस आपको फॉर्मूला चाहिए नो प्रॉब्लम, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ. आर एस स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन ना बेटा. एंड RP के लिए 1/RP. व्हाट इज RP सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. एक काम करते हैं, आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. आप सुनिए स्टूडेंट्स, लेट्स से मैं 2 ओहम को 3 ओहम रेजिस्टर के साथ में यूज़ कर रहा हूँ. करेक्ट है बेटा? अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आर एस क्या होगा? 2 + 3 दैट इज 5 ओम. इफ आई एम कनेक्टिंग द सेम 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल स्टूडेंट्स 1/RP हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2. तो बेटा RP हो जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1.2 ohm. Are you following this example? Students, can I say out of this 2 ohm and 3 ohm, 2 ohm छोटा है out of 2 and 3, 2 ohm छोटा है, बट जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है 1.2 वो ये 2 से भी छोटा है. मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा. आप समझा आपको? एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं 2 and 3 में बेटा 3 बड़ा है, लेकिन जो सीरीज का आंसर है 5 वो 3 से भी बड़ा है. दैट मीन स्टूडेंट्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा, एंड पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा. आपको समझा बच्चों? स्टेटमेंट 1 जो गिवन है उसको मैं यहाँ पे फॉल्स क्यों बोल रहा हूँ इस बार? यस. व्हाट अबाउट नेक्स्ट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 2, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये भी फॉल्स है सर. क्यों सर? बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, मे बी डायरेक्टली और इनवर्सली, बट यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो स्टेटमेंट 2 भी कैसा हो गया बेटा? फॉल्स हो गया. सो आई विल गो विथ ऑप्शन बी. दैट्स योर आंसर बेटा. ऑप्शन बी में गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. सो दैट्स द आंसर. ओके.